Ma'am, we will begin within 5 minutes so that our other members also join in. I hope it's okay with you.
A very warm welcome to everyone present here today. I, Priyanka, on behalf of Institutions Innovation Council of Shahid Rajguru College of Applied Sciences for Women, University of Delhi, would like to welcome Ms. Anu Gupta, the speaker for today's session. Ma'am is an Indian patent agent and trademark attorney. She provides intellectual property rights consultancy and is also an avid speaker for innovation awareness. She worked in IPR Firms of India, where she handled trademarks and patent prosecution matters. We are honored to have you with us, ma'am. We would like to also welcome and extend our sincere and heartfelt gratitude to all the scholarly and knowledgeable teachers and to all the enthusiastic audience present here today. IIC of Shahid Rajguru College has organized this session on the topic Intellectual Property Rights, IPRs, and IP Management for Startups. We would now like to welcome Ms. Anu Gupta to enlighten us about the topic. Over to you, ma'am. Sorry to interrupt you, ma'am. You are not audible. No, ma'am, you are not.
Good afternoon, everyone. I hope I'm audible now. Good morning, ma'am. Yes, good afternoon. Shall I start? Yes, ma'am. Okay. So first of all, thank you for inviting me, Innovation Council of Shahid Rajguru College of Applied Sciences for Women, University of Delhi, to present seminar on a workshop on IPR and IP management for startups. So I am Anu Gupta. I am senior associate in Audis Law Offices, registered patent agent and advocate. I'm having experience of 9 years handling IPR projects. Let me start with the agenda of the today workshop, which is intellectual property rights, facets of IPR. I hope everyone can see the screen. I have shared the screen for the PPT. Yes, ma'am, it's Yes, visible. ma'am. Okay, great. We will discuss about the IPR, facets of IPR, role of IPR, IP management strategy, purpose of getting patent, patent protection, non-patentable inventions, procedure, and startup benefits. So let's take one by one. What are intellectual property rights? So, IPR is a creation of intellectual mind. What does it mean is we have all around the invention, in our surroundings, everything is invention. You know, it's a creation of mind. It's creation of human being. For example, if we have this chair, tables, mobile phones, watches, everything is the creation of mind. It's a creative invention. So that doesn't mean कि IPR जो हमारा प्रोटेक्ट करता है, it's a like a property, like property को हम save करते हैं, we can sell it, we can make it an asset. Similarly, intellectual property rights को भी हम protect करते हैं as an asset. But why we should protect it? Then we will proceed in another slides. But IPR is like if a person is making anything, if he has anything, in his mind, that is kind of a creativity of his idea. So उसने कुछ ड्राइंग बनाई है या कुछ भी उसने इन्वेंट किया है एज अ प्रोडक्ट मशीन या डीएनए से रिलेटेड उसने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी. Everything is creativity of human mind. So it says owners are granted certain exclusive rights to a variety of intangible assets, because once you are making it on a product, it is a tangible asset. But in case you have these things in your mind, as an invention, it is just an idea, it is just a concept, then it's an intangible assets. म्यूजिक साउंड्स आर इंटेंजिबल एसेट्स बिकॉज उसको आपने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया है, इट इज स्टिल इन योर माइंड और मे बी यू आर जस्ट राइटिंग इट. So we will discuss further about what are the types of IPR and how we can protect it. Why these are important in our life. So role of IPR in technology delivery systems. So as I said, IPR creates assets. How? One is you protect it. Like for example, आपने एक chair बनाई and chair को आपने protect कर दिया because, for example, I take a hundreds year ago, हमारे पास chair भी नहीं होती थी. We just had someone thought about it कि हम wood को cut करके we can make it as a sitting device. In a patent terms, we call it sitting device. So हमें बैठने के लिए कुछ चाहिए सर. There was a problem and we solve it as in to make a sitting device. We just cut the wood and use this to sit. Then someone, the other person thought कि ये जो sitting device हमने as a stool बनाया है, they had multiple problems because there was no backrest, no legs and arms. So बहुत difficulty होती थी. तो किसी और ने इसको improvise किया and उसको chair का form दिया by putting legs, arms and backrest. This was another kind of a invention जिसको उसने protect कराया.
and now that become his asset because first time उसने ये चीज मार्केट में लेकर आया तो उसको चाहिए था कि मैं प्रोटेक्ट कर सकूं so that no one can use his idea because that was first उसका आइडिया था आइडिया को उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया बट उसका ये यूनिक इनोवेटिव आइडिया प्रोटेक्ट कैसे होगा that is why IPR came into the role to give monopoly rights to the inventor so monopoly rights is like कि आपके परमिशन के बिना कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता once you got the patent or once you got the IPR protection you are allowed to know or to tell it कि ये चीज मेरे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता without my permission that gives monopoly rights so brands the product and create market value अब अगर आप कुछ यूनिक एंड इनोवेटिव मार्केट में लेकर आ रहे हो फॉर एग्जांपल आई सेड दिस चेयर एग्जांपल एंड पहले ये मार्केट में नहीं था तो इट हैज मार्केट वैल्यू क्योंकि ये पहले नहीं था प्रॉब्लम्स वाज देयर बट मार्केट में इसका सॉल्यूशन नहीं था तो सॉल्यूशन के लिए यू हैड क्रिएटेड द प्रोडक्ट एंड वो प्रोडक्ट किसी और के दिमाग में आया ही नहीं था तो दैट मेक्स कि पहली जो चीज नहीं थी जो आप लेकर आए हो उसकी मार्केट वैल्यू आपने बनाई है सो इट्स लाइक you are getting IPR right as to create a market value rights as incentives once you made it into a product and आपने प्रोटेक्शन भी ले लिया as I said कि आपकी परमिशन के बिना कोई उसे मैन्युफैक्चर सेल या यूज नहीं करेगा आई गेटिंग माई पॉइंट अगर आपके बिना परमिशन के बिना कोई उसे यूज नहीं करेगा तो जितनी भी सेल होगी जितना भी आपको आप किसी को लाइसेंस कर रहे हो आप किसी को परमिशन दे रहे हो सबका इंसेंटिव्स आपको आता है प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम illegally exploitation the creation आपकी परमिशन के बिना अगर कोई यूज करता है so you have that legal rights to take action against it avoid reinventing the same technology अगर आपने कुछ इन्वेंशन को प्रोटेक्ट किया है तो आपकी जैसे जर्नल्स पब्लिश होते हैं पेटेंट्स भी पब्लिश होते हैं सो पेटेंट्स पब्लिकेशन के थ्रू पीपल नो अबाउट इट दैट यू हैव डेवलप्ड एनीथिंग लाइक प्रोडक्ट और प्रोसेस सो यू कैन सेव इट कि कोई उसको डुप्लीकेसी में ना बनाए आपने तो एक आइडिया लगा के आपने चेयर बना ली विच इज लाइक आपने किसी को बताया ही नहीं उसके बारे में मार्केट में आया ही नहीं बट सेकेंड पर्सन थॉट आफ्टर लाइक 5 years एंड उसने सेम इनपुट्स डाले बट इट वाज ऑलरेडी इन द मार्केट बिकॉज आपने पहले अगर मार्केट में ले आया तो 5 साल की उसकी मेहनत बच गई दैट इज व्हाई गवर्नमेंट गिव्स कि आप इसे प्रोटेक्शन लो एंड हम इन एक्सचेंज हम मार्केट में उसको लेकर आएंगे एज अ पब्लिकेशन नॉट एज अ प्रोडक्ट नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पज एज अ पब्लिकेशन सो पीपल नो अबाउट इट कि आपने क्या इन्वेंट किया है What are the facets of IPR? So there are different types of IPR. First is patent, which we are already discussing about, trademark, copyrights, designs, traders, geographical indication, layout designs, trade secrets, and plant varieties. First, we will discuss about these three: patents, copyrights, and trademark. Patent is an intellectual property right granted by the government for the product, process, or anything which is related to. Maybe it's a system or articles. For example, mobile phone. So mobile phone we are using, since long time. पहले telephone आए, Graham Bell ने invent किया. So firstly उन्होंने prototype protect करवाया. It was not a telephone. It was just an idea जो उन्होंने protection ले लिया. Later on, advancement had been occurred and उन्होंने different types के टेलीफोन मार्केट में लेकर आए और अब हमारे पास we are very privileged to use mobile phones so technology had been advanced and उसको प्रोटेक्शन भी उन्होंने दिया है so patent is like a product तो आपने जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो वो एक प्रोडक्ट हो गया आपकी एक टेक्नोलॉजी होगी that how to actually communicate with other person पहले 100 years ago there was no instrument like this but now we have developed it and Apple continuously इसमें improvement कर रहा है इसमें बहुत सारे डिजाइन्स के चेंजेस कर रहा है जितने भी प्रोटेक्शन मतलब मार्केट में आने से पहले वो पेटेंट कराएगा या डिजाइन प्रोटेक्शन कराएगा देन मार्केट में लेकर आएगा ट्रेडमार्क सो सोनी का हम एग्जांपल दे रहे थे मोबाइल फोन्स
So if we talk about the mobile phones, Sony, Samsung, these are all brand names, because हम मोबाइल ने को कैसे जानते हैं, हम ब्रांड नेम से जानते हैं, नो सोनी है, ये सैमसंग है. सो दीज आर ब्रांड नेम्स विच कम्स अंडर ट्रेडमार्क. पेटेंट का मैंने आपको बताया, पेटेंट इज लाइक प्रोटेक्शन फॉर द प्रोडक्ट और अ प्रोसेस. अगर हम ब्रांड नेम्स की बात करें, दैट इज ट्रेडमार्क. So trademark is a kind of a symbol, logo, word which provides a consumer an impression कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा ब्रांड नेम है, जिससे लोग उस चीज को जान सके. अगर आप मार्केट में जाते हो तो यू आस्क फॉर कि हमें सैमसंग का फोन चाहिए, नोकिया का चाहिए. सो इट इज अ ब्रांड नेम और वो प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क के अंदर आता है. It has different types, as you can see. Beer company which is generic, वो protectable नहीं है, but there are certain things like Burger King, McDonald, Apple का logo, Exxon, these are trademark protected. So these are granted for 10 years and फिर उसके बाद आप renewal कराते हो for the unlimited period of time. So these are two types of IPR. First is patent, second is trademark for the brand protection. These are further examples, like for the color marks, for the sound marks, there are shapes which are protected under the trademark, like Nokia, Yahoo, Cadbury chocolates, shape of the footwear. Once we protect the trademark, we can use R as a registered trademark protection to show everyone that our mark is protected. And if it is in pending, we can use TM. Third is copyright protection. So two things we have covered. Third is like manual, literary work, sound work. So जब हमने मोबाइल फोन को बनाया, there would be a manual कि कैसे उसको यूज करना है या क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे. We can protect it under the copyright. So catch is कि copyright protection ना mandatory नहीं होता. अब लाइक यू आर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आप ना थीसिस लिखते हो या कुछ भी बुक लिख लेते हो या आर्टिकल लिख लेते हो, सो उस पे आपका कॉपीराइट प्रोटेक्शन कैसे है? सो कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज नॉट मैंडेटरी. वंस यू राइट इट, इट हैज कॉपीराइट प्रोटेक्शन, बट आप उसको प्रूव कैसे करोगे, कि मैंने सबसे पहले लिखा है. मे बी योर कलीग, मे बी योर बैचमेट कैन कॉपी इट एंड से इट कि ये तो मैंने लिखा था पहले, मैंने इसको कैच ड्राइंग बनाया था. तो आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन से हेल्प मिल जाती है टू शो द एविडेंस इन फ्यूचर कि ये फर्स्टली मैंने काम किया था, मेरा आइडिया था ये. अब वो आप आर्टिकल हो, कोई भी आपने ड्राइंग बनाई हो या आपने कुछ म्यूजिक बनाया हो, दीज ऑल काइंड ऑफ अ वर्क कम्स अंडर द कॉपीराइट प्रोटेक्शंस. So these are the types I have mentioned. First is literary work. Anything which is kind of a language, आपने पैराग्राफ्स में लिखा है, बुक्स में लिखा है, मैगजीन्स हैं, वो लिटरेरी वर्क्स में फॉल करेगा. देन म्यूजिकल वर्क लाइक साउंड्स एंड म्यूजिक यू लिसन टू. कोरियोग्राफिक वर्क लाइक हमें पता ही है सिनेमाटोग्राफी. सो जितने भी मूवीज हैं, जितने भी साउंड एंड वीडियो वर्क है, दैट फॉल्स अंडर कोरियोग्राफिक वर्क. ड्राइंग्स, then computer programs, databases, all comes under copyright protection. Fourth type of protection is designs. So if we talk about Bisleri bottles, जितने भी bottles market में आई हैं, has unique shapes. हर बार कुछ ना कुछ नया शेप लेकर आता है, चाहे वो बिस्लेरी हो, चाहे कोई अदर ब्रांड्स हो. तो हर कोई कंपटीशन में लगा है टू शो कंज्यूमर कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. वाटर इज सेम, वाटर इज जस्ट लाइक जो भी हम ड्रिंक कर रहे हैं उसमें आपने उसको चेंजेस कुछ नहीं कर सकते, बट आप बॉटल की शेप में यूज कर सकते हो, ब्रांड आप प्रोटेक्ट करा सकते हो, सो द कंज्यूमर नो कि ये हमारी ब्रांड का ही डिजाइन है, आप हमारी बोटल्स यूज करिए. वी आर द मेन makers of these water bottles. So design protects unique shape and design. अब यहाँ पे मैंने examples दिए कि these are kind of a bottles which has the unique design. It can be protected. There are some other examples like perfume bottles. इनकी shapes बहुत unique है. You can protect it. Then there are certain restrictions like कुतुब मीनार की जो picture है, आप
उसको शेप देकर किसी सिगरेट होल्डर या मैच स्टिक में इनकॉर्पोरेट करके अगर आप बना सकते हो तो वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। एल्बर्ट से कुतुब मीनार आपने कुछ नहीं किया है, कुतुब मीनार की शेप आपको पता है, बट आपने उसको इम्प्लाई किया किसी प्रोडक्ट में विच वॉज नॉट नोन बिफोर, मार्केट में वो ऐसे प्रोडक्ट्स थे ही नहीं, तो वो भी आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा बिकॉज आपने इनपुट्स लगाए हैं, आपने टेक्निकल स्किल्स यूज करी है। सो इन आईपीआर एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्निकल स्किल्स यू हैव, कि आप उसमें टेक्निकल स्किल्स क्या लगा रहे हो, आप उसमें ओरिजिनलिटी क्या लेकर आ रहे हो। अगर कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आ रहे हो तो उससे पहले आप उसको प्रोटेक्ट कराओगे सो दैट यू गेट द राइट्स ऑफ इट। Fifth is geographical indication. So geographical indications are like places name which is used to identify the origin and quality. So most famous example is Darjeeling tea, Kanchipuram silk, and Kadangi साड़ी अभी तमिलनाडु का geographical indication उसको मिला है। So these are the examples of geographical indication. एक और है बीकानेर भुजिया, there are lot of examples. So उस पे किसी का राइट एज अ पेटेंट या ट्रेडमार्क नहीं है बिकॉज दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम प्लेस विच हैज द यूनिक वैल्यू। लाइक दार्जिलिंग की टी किसी और जगह पे आपको उस तरीके की टी नहीं मिल सकती। इट इज फेमस फॉर कि वहां पे ओरिजिन हुआ है उस टी का, दैट्स व्हाई इट हैज दैट यूनिक टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी। फिफ्थ इज प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट प्रोटेक्शंस। जो जितने भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स, वो प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट प्रोटेक्शन में आता है, वो पेटेंट प्रोटेक्शन में नहीं आएगा। सो दीज आर द डिफरेंशिएशंस बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आईपीआर वी हैव। IP management strategy. So once we decided what kind of a patent protection, what kind of a IPR protection we are seeking, then we take 3 steps. First is protect the innovation. अगर आपका कोई भी इन्वेंशन आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट है, आप पेटेंट में जाओगे। अगर आपको कोई भी लिटरेरी वर्क है, आप कॉपीराइट में जाओगे। सो नाउ यू नो कि आपको किस टाइप का आईपीआर चूज करना है once you got the idea. Once you decided that how I can protect the innovation, we have to expand the jurisdiction because IPR is territorial in rights, which means कि अगर आपने इंडिया में प्रोटेक्शन लिया है तो इंडिया में ही आप यूज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, किसी और कंट्री में नहीं कर सकते। So this is like limited rights. So based on कि आपको अपनी कमर्शलाइज कहाँ करना है, कहाँ पे सेव करना है कि कोई और आपका कॉपी ना कर सके, so you have to decide the jurisdiction as well. Maybe India, USA, China, these are the main countries where you want to work and where do you want to save from others. तो आपको वो jurisdiction के basis पे decide करके strategy बनानी पड़ेगी. So these are the strategy. First you protect it, then you expand the jurisdiction, then avoid infringement. Avoid infringement means infringement is a law word which you may not understand, which is copying. अगर कोई भी आपका कॉपी कर रहा है, it's a kind of an infringement. And in IPR law, we have some remedies that if someone is doing infringement, we can stop them through injunctions or claim damages. इंजक्शन मीन्स कि अगर आपका कोई भी कॉपी कर रहा है एंड यू गॉट टू नो कि पेटेंट कॉपी कर रहा है, प्रोडक्ट कॉपी कर रहा है, कॉपीराइट का कोई भी मैटर कॉपी कर रहा है, तो आप इमीडिएटली एक्शन लोगे, उसे बोलोगे कि आप यूज नहीं कर सकते हो, आप मेरी परमिशन के बिना यू कैन नॉट यूज इट। सो आप लीगल नोटिस सेंड करते हो। बट अगर वो स्टिल आपकी बात नहीं मान रहे तो आप कोर्ट में जाते हो एंड कोर्ट में आप बोलोगे कि दिस पर्सन इज यूजिंग माय इन्वेंशन एंड यूजिंग माय कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड मैटर विच इज नॉट अलाउड, सो यू विल गेट इंजक्शन। सो इमीडिएटली इंजक्शन का मीन्स है कि कोर्ट आप उसको बोलेगी कि आप इनका इन्वेंशन, प्रोडक्ट या कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते हो, आपको इंजक्शन वो प्रोवाइड करेगी। Second is remedies damages. Once court decided कि ये जो invention है, ये आपका copyright is registered on your name, it's your asset, no other can use it, तो जो भी infringe कर रहा होगा उसको damages भी देने पड़ेंगे। So this is the another benefit, कि अगर आप protect करा रहे हो, आप proper actions ले रहे हो, तो इट्स लाइक कि आपने ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टाइम अपना और अपने पैसे ही वेस्ट कर रहे हो। कोर्ट के पास इन सब चीज के लिए रेमेडीज भी होती है कि अगर कोई यूज कर रहा है तो आपको वो डैमेजेस प्रोवाइड कराएगी।
claiming that you are the rightful owner of that IPR asset. So as I discussed different types of IPR about phone. So phone has multiple IPR assets. So it is possible that I have a product. So it is not only claiming a patent protection. It may claim multiple IPR protection. First is patent. As I say, it is about the technology. Like patent is a kind of product or process. So phone हमारा प्रोडक्ट में भी फॉल कर रहा है एंड प्रोसेस में भी फॉल कर रहा है. हाउ? बिकॉज प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फोन is maybe different from the person who had developing a telephone. Conventional telephone से अलग हो गया मोबाइल को डेवलप करना. So वो प्रोसेस भी आप प्रोटेक्ट कराते हो. So companies like this, Apple, Nokia, they protect process and product both. Second is logo. Apple का logo आप देख सकते हो, that is trademark and copyright protected. Aesthetic shape and design, जैसे कि किसी में फिंगरप्रिंट सेंसर लगा दिया, किसी में 3 टाइप्स के कैमरा आ गए. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ द मोबाइल फोन्स. दीज आर ऑल प्रोटेक्टेड अंडर द डिजाइनर एक्ट. देन फोर्थ इज लिटरेरी म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क. जो जितने भी म्यूजिक एप्लीकेशंस आप उसमें डाउनलोड कर रहे हो या कुछ भी डाटा आप उसमें पिक्चर्स डाउनलोड कर रहे हो, दीज आर ऑल आर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड. सो व्हेनेवर यू यूज समथिंग यू हैव टू चेक. So catch is, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं भी ले रहे हो, you may on the other side, you can't be infringer. कि infringement से बचा तो लिया आपने, अपना इन्वेंशन प्रोटेक्ट करा लिया, आप बचा रहे हो. बट अगर आप ये सब चीजें नहीं भी कर रहे हो, if you don't have any idea, आपको प्रोटेक्शन नहीं भी लेना, तो आप ये ध्यान रखो कि आप इन्फ्रिंजर ना बन जाओ, आप किसी और का IPR प्रोटेक्शन यूज ना कर लो. इट्स वेरी इजी दीज डेज कि आपने गूगल किया, कुछ भी डाटा लाया और आपने कॉपी कर लिया. So you have to be very cautious that don't use other work. Otherwise, आपके ऊपर infringement का केस हो जाएगा. So these has to be noted कि आप बहुत carefully किसी का भी डाटा या किसी की invention use कर रहे हो. What are the purpose of getting patent? As I say, we get the rights, exclusive rights. We can prevent third parties. We can license to others. It increases the market value, and we do have legal remedies available against infringer. So these are very interesting examples of patent. So I wanted to mention these kind of invention to mention. ऐसा नहीं है कि आप कुछ आइडिया लेकर आ रहे हो और आपको उसको कमर्शलाइज करना ही है. सो ये 2021 का एक पेटेंट है विच इज सम 21 का नहीं, सॉरी, 1976 एंड 2006, जिसमें लोगों ने पेटेंट करवाया लाइक टीवी कंट्रोल डिवाइस. हाउ यू कैन सी हाउ ही इज यूजिंग. इट हैज अ स्टिक एंड आप टीवी के जितने भी बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हो. So 1976 में इस टाइप के इन्वेंशन की इंपॉर्टेंस थी बिकॉज दैट टाइम वी डोंट हैव रिमोट्स, बट ये मार्केट में आया ही नहीं. उन्होंने टीवी कंट्रोल डिवाइस बनाया, पेटेंट प्रोटेक्ट कराया, देन मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स some other people have developed it, some kind of a new product, so ये मार्केट में नहीं आया. Similarly 2006 में frameless glasses attaching to body. So whenever we you use glasses, we do have this kind of a problem कि हमें फ्रेम से प्रॉब्लम होती है. सो इन्होंने फ्रेमलेस ग्लासेस बनाया कि बॉडी पे अटैच हो जाएगा, बट लाइक इट्स लाइक अ पियर्सिंग, बॉडी पियर्सिंग. सो ये मार्केट में नहीं आया. मे बी यू कांट सी दैट इन मार्केट. Body worn device for dance simulation. So it's another interesting example. So if no one have this dance abilities, these can use this device. So they can wear this device in their body and they can dance. So it's a kind of a funny examples we are getting in the patent scenario. So these are very funny things, but people are using their ideas. So my purpose is to understand that you should know if you have any idea, maybe in the form of product or not, you can use IPR as an asset. So maybe you cannot commercialize, maybe you sell it to other person, maybe you license it, or maybe you use that invention as an improvement innovation. So when we talk about patent,
what are the main steps we should consider when we are going for the patent protection in India? First is patent searching. As like we search for the journals, on Google Scholars, everyone are very familiar about the Google Scholars. Similarly, there are Google patents for the US patents and EP patents, European patents. So we can search very easily that how many patents are available on that technology. For example, I take umbrella. Umbrella is very simple device. We use it in the rainy season. Kal bhi hai, jaise we are suffering from the rain, but we are able to use and go out using this kind of a umbrella. But market में umbrella के भी types है. So there are like hundreds of different types of umbrella which are protected under the patent. बिकॉज अगर आप पेटेंट में सर्च करोगे अम्ब्रेला के, आपको थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ पेटेंट्स मिल जाएंगे. हाउ इज दैट पॉसिबल कि एक ही काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, मल्टीपल वेरिएशंस हो सकते हैं, बट थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट बट इन्होंने इम्प्रूवमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में किसी ने टॉर्च इंक्लूड कर दी, कि हम रात को वॉक नहीं कर सकते तो हमें टॉर्च भी चाहिए. उसके साथ बहुत सेंसर्स भी उन्होंने लगा दिए कि लोग आराम से देख सके कि उनके आसपास कौन आ रहा है. So these kind of a technology and improvement they are trying to do, so they get the IPR assets which has the value in the market. So first we have to deal कि what kind of a product is already there, because कुछ markets में available है, but is it like कि वो patent protected है भी या नहीं. So that's how patent searching रोल आता है इसका, कि आप एक बार पेटेंट सर्च कर लो, मे बी ऑन द गूगल patent search, which is limited to US and European, and there are other databases for Indian patents, for Chinese patents, so you can use that databases. Second is patent drafting. Like we draft the thesis, like we draft the journal papers, patent has specific format to follow. Third is patent filing. Once we drafted, patent drafting में important होता है claims, which you may not understand, but आपको जो right मिलता है वो claims में right मिलता है. So when you are going for the patent thing, you have to be very cautious about what we are claiming. So अगर आप umbrella को protect करा रहे हो, तो umbrella के सारे parts define होने चाहिए कि आपने उसमें कौन सी technology use करी, आपने उसमें क्या innovate किया, ये सब mention होना चाहिए. पेटेंट फाइल कराने के बाद आपके पास ग्रांट आएगा. जब आपका ग्रांट हो जाएगा तो यू हैव टू बी मैनेज, पेटेंट मैनेजमेंट इज अनदर वर्ड, बिकॉज आपको ये देखना होगा कि कोई उसको इन्फ्रिंज ना कर रहा हो, एज आई सेड कोई कॉपी ना कर रहा हो, या पेटेंट वॉच करना होगा जिससे आपको पता चल सके कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है एंड हाउ वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप उसको सेल कर सकते हो या लाइसेंस दे सकते हो. फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे आजकल बहुत करती है, रेनबैक्सी है, जितनी भी सिप्ला है, ये मेडिसिन बनाती है, पर मेडिसिन का जब पेटेंट कराती है वो इतनी कॉस्टली हो जाती है कि लोग उसे यूज ही नहीं कर सकते. अब उसको गवर्नमेंट उन्होंने एक ये स्ट्रैटेजी लेकर आए इसी चक्कर में कि जेनरिक मेडिसिन आप लेकर आओ मार्केट में, बिकॉज जो ओरिजिनल मेडिसिन हैं उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है. इफ पीपल आर नॉट एबल टू यूज इट तो बेनिफिट ही क्या है, देयर इज लाइक क्या ही आप इन्वेंशन कर रहे हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जेनरिक कंपनीज और जेनरिक मेडिसिन भी लेकर आ रही है मार्केट में. When we go for the patent, there are 3 criteria which needs to be followed stringently. First is novelty in everything. Like कोई भी आप IPR का चूज कर लो टाइप, बट उसमें नॉवेल्टी जब तक नहीं है, विच मीन्स कि न्यू ओरिजिनल होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए जो मार्केट में नहीं है. इफ देयर इज अ थिंग विच यू हैव डेवलप्ड एंड मार्केट में वो ऑलरेडी है, I have no interest. Maybe I am a buyer. Maybe मुझे आपके काम में इंटरेस्ट है. I am not the IPR person who wants to protect your idea. But मुझे इंटरेस्ट क्यों आएगा जब तक वो कुछ नया आप नहीं लेकर आ रहे हो. But maybe that can be the minor modification which has the advancement जो लोग पहले लेकर नहीं आए. तो न्यूनेस की क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है. इट्स अ मस्ट. सेकेंड इज नॉन ऑब्वियस. दैट मीन्स कि वो इन्वेंटिव होना चाहिए. इन्वेंटिव स्टेप और न्यूनेस में डिफरेंस है. न्यूनेस इज कि आप कुछ नया लेकर आए हो, आपने उसमें टॉर्च इंक्लूड कर दी, फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला में, ये एक नया हो गया. पर नॉन ऑब्वियस इज कि ये जो टॉर्च आपने इंक्लूड करी है, क्या किसी और के माइंड में पहले नहीं आया, मतलब किसी और ने सोचा ही नहीं.
इतना टेक्नोलॉजी आपने एडवांस कर दिया कि वो टॉर्च उसको असेंबल करना किसी और के माइंड में नहीं आया. दैट क्लेम्स एज अ नॉन ऑब्वियस क्राइटेरिया, कि वो किसी के लिए भी ऑब्वियस नहीं होना चाहिए. अगर इट इज वेरी ऑब्वियस तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा. थर्ड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, लाइक यूज होना चाहिए इंडस्ट्री में. मैक्सिमम केसेस में जितने भी आप कोई भी आइडिया या प्रोडक्ट लेकर आओगे उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होती है. सो टू क्राइटेरिया आर मोर need to be focused, which is novelty and non-obvious whenever you are going for the patent thing. पेटेंट का टर्म होता है 20 years. 20 years के बाद everyone is liable to use it. जितने भी मैं आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको इन्फिनिटी टाइम के लिए मिल रहा है. दे हैव लिमिटेड टाइम. पेटेंट में 20 इयर्स है, कॉपीराइट में 60 इयर्स प्लस ऑथर्स राइट प्लस 60 इयर्स है, ट्रेडमार्क में इन्फिनिटी पीरियड के लिए जब तक आप रिन्यूअल कराते रहते हैं, एंड डिजाइन में 15 इयर्स के लिए. सो मे बी पीपल वुड हैव क्वेश्चन कि 20 इयर्स के लिए ही क्यों है. सो द थिंग इज कि हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो अगर किसी के माइंड में आइडिया आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, कुछ टेलीफोन बना रहे हैं, कुछ बल्ब बना रहे हैं, बट उस टाइम पे अगर प्रोटेक्शन नहीं हो तो वो आइडिया वैनिश ही हो जाएगा उनके साथ. उन्होंने किसी और को मेंशन नहीं किया. फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने कलीग्स को भी नहीं बताया, उन्होंने वो प्रोटेक्शन करवाना चाहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सो दैट मेरे पास ही वो आइडिया रहेगा. बट वंस ही डाइड, उन्होंने कुछ भी नहीं प्रोटेक्ट कराया, ना उन्होंने गवर्नमेंट को पब्लिश किया, किसी और को उन्होंने बताया नहीं, तो वो आइडिया उन्हीं के साथ ही चला गया. अब कोई और पर्सन उसमें काम करेगा उसी टेक्नोलॉजी में, फिर वो 10 इयर्स इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद वो मार्केट में आएगा. सो गवर्नमेंट से कि आप हमें अपना आइडिया बताओ, हम 20 इयर्स के बाद लोगों के लिए उसको ओपन कर देंगे, सो दैट मैनकाइंड के लिए वो बेनिफिट हो. सो आपको भी बेनिफिट हम दे रहे हैं फॉर 20 इयर्स. 20 इयर्स में आप अपना पूरा रेवेन्यू पूरा करो, एंड आफ्टर 20 इयर्स हम ह्यूमन के लिए, अपना मैनकाइंड के लिए यूज करेंगे, सो दैट हम उसको और अच्छे से बेटर कर सके, टेक्नोलॉजीज को यूज कर सके. तो 20 इयर्स का टाइम वैसे भी अगर मैं कहूँ तो बहुत इनफ होता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जांपल, मोबाइल फोन्स आया 1990s में नहीं थे, तो 20 इयर्स के लिए जब आपने राइट ले लिया तो 20 इयर्स के बाद तो और एडवांसमेंट हो गई मोबाइल फोन्स में. चेयर की बात करूँ तो चेयर भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं, हर 2-4 साल के बाद इंप्रूवमेंट हो जाती है. तो एक टेक्नोलॉजी में 20 इयर्स पे आप स्पेंड नहीं कर सकते. दे गिव यू अ पुश कि आप उसमें और एडवांसमेंट लेकर आओ, नई एप्लीकेशन, नया पेटेंट आप लेकर आओ. This is another example of umbrella. Again, funny example, in 2005, someone has filed for the pet umbrella. Right? Pet also needs protection, so they have developed pet umbrella. Who can file a patent? A person claiming to be the true and first inventor of the invention. So that it means if you have developed as an inventor is who is developing it. So if you are working on some kind of an idea and concept, you are the inventor. So you can file as an inventor. Maybe you are giving your rights to the university because you are working under the university. You are doing projects under the university or institute. So here applicant will be institute or university because you are using the resources of the university. So applicant will be institute or university, and आपके जो rights होंगे वो होंगे as a inventor. अब एज ए इन्वेंटर आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? आप अपने रिज्यूम में लिख सकते हो कि लाइक जैसे आप जर्नल्स पब्लिश कर सकते हो कि ऐसे हमने पेटेंट्स हमने करवाए हैं हमारे, क्योंकि उससे आपके स्किल्स पता चलते हैं. हाउ मच एफर्ट्स यू पुट इट इन योर स्टडीज, हाउ मच एफर्ट्स यू आर एज अ स्टार्टअप, और मे बी यू वांट टू ओपन अ कंपनी, बट क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी, वो स्किल्स हैं? सो दीज शोज योर स्किल्स इन द रेज्यूमे. सो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो कि यू आर द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हु मेड दिस काइंड ऑफ इन्वेंशन व्हिच वाज नॉट देयर, एंड एप्लीकेंट विल बी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट.
Third is legal representative. In case it is like for the deceased person, then legal representative भी आपके behalf पे file कर सकते हैं and they can get the patent application. When we are talking about the startups, as a startup, what we are getting? So, you know, मोदी जी कुछ benefits patents में additionally लेकर आए थे 2016 में. So उन्होंने बोला कि अगर if you are a startup, you know, if you are registered as a startup, then we will give you 80% rebate on fees. So किसी भी टाइप में IPR में अगर आप नॉर्मली फाइल करते हो, एज ए इंडिविजुअल फाइल कर रहे हो तो फीस अलग है, एज अ कंपनी और एज अ यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप कंपनी एज अ फाइल कर रहे हो उसकी फीस अलग है. बट जब आप एज अ क्लेम कर रहे हो कि आई एम द स्टार्टअप कंपनी, then you can get the 80% rebate on official fees. So normally it is 1600 for startups and individual for the patents, and for company it's 8000. So there is like a huge gap. So government is giving a lot of benefits to the startups these days. Second point is faster examination process with expedite examination requests. So earlier, after 5-6 years ago, it happens like कि पेटेंट आपने फाइल किया एंड 5-6 सालों तक आपको मिला ही नहीं है ग्रांट, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मे बी 3 years. सो यू बिन लाइक कि इतना टाइम लग रहा है, इतने में तो हम कमर्शियलाइज क्या ही करेंगे. सो उसका बेनिफिट ही चला जाता था. अब क्या करे, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को ये दिया है एक बेनिफिट कि आप इसको एक्सपर्टाइट कर सकते हो. इफ समवन इज इंटरेस्टेड और स्टडी अबाउट द पेटेंटिंग, दे मस्ट नो कि आजकल 6 months और 8 months में भी स्टार्टअप को ये पेटेंट्स मिल रहे हैं. हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली दैट यू कैन एक्सपर्टाइट द एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट in which you can follow certain rules and आपको वो 6 months and 8 months में decision at least मिल जाएगा whether it is can be granted or refused. There are certain types of patent applications in India. So based on your invention, there are two important things. First is provisional and complete specification. Provisional, as the name indicates, it's a provisional application. It's not complete. So what does it mean? कि आपका जो idea है, मैंने कुछ बनाया, कि मेरे को सोचते सोचते अभी कुछ idea आया and I want to protect it. But उसका सिर्फ prototype है, मेरे पास कुछ भी और इनपुट्स नहीं है कि हाउ आई कैन मैन्युफैक्चर इट, हाउ आई कैन ट्रांसफर इट इन अ प्रोडक्ट. तो आप उसको प्रोविजनल एप्लीकेशन की तरह फाइल कर सकते हो. अब इसका बेनिफिट क्या है? आपने जब प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर दी तो आपने एक डेट सिक्योर कर ली. फॉर एग्जांपल टुडे, आज ही मुझे आइडिया आया और आज ही मैंने उसको सिक्योर भी करा लिया. अब कोई भी अगर सिमिलर टाइप ऑफ आइडिया उनके माइंड में आता है और प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं तो उनको राइट नहीं मिलेगा. आज के बाद की डेट की मैं बात कर रही हूँ. तो अगर कोई फॉर एग्जांपल एक हफ्ते के बाद कोई एप्लीकेशन फाइल करता है तो मेरा राइट सिक्योर हो गया क्योंकि मैंने प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर दिया, मैंने डेट सिक्योर करा लिया. उसके बाद अब कोई भी फाइल करे, इट डजंट मैटर. बट अगर आप लेट करते हो आज की डेट से पहले किसी और ने फाइल किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी किसी और ने फाइल किया हुआ है. सो दिस फॉलोज फर्स्ट टू फाइल सिस्टम. जो पहले फाइल करेगा उसको राइट मिलेगी. So this is very important point to be noted कि अगर आपको IPR में इंटरेस्टेड है, पेटेंट एप्लीकेशंस लेने में इंटरेस्टेड है, so you have to move fast. आप कहीं भी पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपने कहीं भी पब्लिश कर दिया है एज अ मैगजीन, मे बी जर्नल या किसी कॉन्फ्रेंस में भी अपना आइडिया बता दिया, तो वो नॉवेल्टी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है वो लैक हो जाएगा. यू कैन नॉट गेट द पेटेंट ऑन द बेस कि ये आइडिया आपका नया नहीं है या इन्वेंटिव नहीं है, आपने ऑलरेडी खुद ही डिस्क्लोज कर रखा है. Second is complete specification, which says कि अगर आपका आइडिया कंप्लीट है, यू नो कि what are the terms, what are the elements, सब कुछ आपको पता है. So you just write it in a patent drafting form and उसको आप फाइल कर सकते हो. तो there are two ways कि आप प्रोविजनल के बाद कंप्लीट फाइल करो या डायरेक्टली भी आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हो. There are certain other types of patent applications. पेटेंट ऑफ एडिशन इज जस्ट दैट कि अगर आपने पेटेंट फाइल किया है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट अगर एप्लीकेशन डालनी है तो पेटेंट ऑफ एडिशन है. I think divisional and convention, I will skip it for right now. PCT application is kind of a when you want to file in multiple countries. As I said, it's a jurisdiction rights, territorial in nature. तो अगर आपको 5 कंट्रीज में फाइल कराना है, USA, जर्मनी, इंडिया इज इंक्लूडेड ऑलरेडी, चाइना, सो आपके पास सिर्फ 12 months का टाइम होता है.
कि आप 12 मंथ्स में ही हर कंट्री में आपको फॉलो करना है, हर कंट्री में फाइल कराना है. नाउ इट्स वेरी पेनफुल बिकॉज आपके पास इतना कॉस्ट नहीं होगा हर कंट्री में फाइल कराने का, आपके पास टाइम भी नहीं है कॉस्ट मैनेज करने का, तो आप कैसे करोगे डील. तो देयर इज लाइक अ पीसीटी एप्लीकेशन फॉर दैट कि आप पहले पीसीटी एप्लीकेशन फाइल कर दो, तो यू गेट 30 से 31 मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग डेट टू फाइल इन दोज कंट्री. दिस एट कॉस्ट अ बिट, बट आपको टाइम मिल जाता है एंड साथ ही आपको एक क्राइटेरिया का ओपिनियन भी पीसीटी एप्लीकेशन को दे देते हैं, सो दैट यू डिसाइड कि आपको किस कंट्री में जाना है एंड किस कंट्री में नहीं जाना है. These are the documents required for patent filing application. Now there are certain restrictions also कि पेटेंट आप चाह रहे हो, बट आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि there are certain types of ideas and concepts which are not patentable. कि आपका आइडिया नया भी है, इन्वेंटिव भी है, आप कह रहे हो कि मैडम मैं ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं करा सकता, बिकॉज देयर आर रिस्ट्रिक्शंस आल्सो इन इंडिया. दीज आर दैट like computer related inventions are not protectable. So we may heard कि softwares as per se अगर मैं सॉफ्टवेयर को पेटेंट में करा रही हूँ, प्रोटेक्शन उसमें लेना चाह रही हूँ, तो वो प्रोटेक्टेबल नहीं है. सॉफ्टवेयर किस में जाएंगे, कॉपीराइट में जाएंगे, पेटेंट्स में नहीं जाएंगे इफ इट इज प्योरली सॉफ्टवेयर. बट सॉफ्टवेयर के साथ देयर आर हार्डवेयर इन्वॉल्व. आपने एक सिस्टम बनाया है, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही है ना, जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम में बात करें तो एप्लीकेशंस आती है कि वहां पे डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड होता है एंड हम कुछ भी टाइप करेंगे हमें अपने अकॉर्डिंगली डाटा फेच होकर मिल जाता है. सो दीज आर काइंड ऑफ इनोवेशन पीपल आर पुटिंग ऑन, बट आर दीज प्रोटेक्टेबल? Answer is yes or no both, because if I am just protecting the codes, softwares are related to codes, तो ये प्रोटेक्टेबल नहीं है. दिस विल अंडरगो एज अ कॉपीराइट. बट इफ आई एम टेकिंग एज अ सिस्टम कि मैंने ये डाटा को पहले कैसे कलेक्ट किया, देन हाउ आई स्टोर्ड इट, हाउ आई मॉडिफाइड इट, इट्स अ ऑल प्रोसेस एंड इट इंक्लूड्स सेवरल हार्डवेयर, then I can protect under patent. Now the question is कि पेटेंट एंड कॉपीराइट में क्या डिफरेंस है एंड मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर मैं कॉपीराइट ही कराता हूँ, पेटेंट नहीं कराता हूँ. सो द थिंग इज पेटेंट आपको 20 इयर्स के लिए राइट दे रहे हैं. 20 इयर्स में आप सबको रोक सकते हो प्रोडक्ट को किसी भी तरह से यूज करने के लिए. आपकी एप्लीकेशन किसी हार्डवेयर में इंस्टॉल्ड है, आपने एक सिस्टम बना के उसे तैयार किया है, तो आप किसी को भी रोक सकते हो. कॉपीराइट में भी सेम है, बट कॉपीराइट में कॉपी करना इजी हो जाता है. हाउ? बिकॉज इट्स अबाउट सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अब वो मॉडिफिकेशन का आउटपुट रिजल्ट कुछ और ही आ गया, मे बी माइनर मॉडिफिकेशन बट आउटपुट रिजल्ट्स आर डिफरेंट. सो कोड्स विल से कि आपके कोड और इनके कोड में डिफरेंस है, आपके प्रोडक्ट और इनके एंड प्रोडक्ट में डिफरेंस है, तो ये इन्फ्रिंजमेंट या कॉपी नहीं है. पेटेंट में ऐसा नहीं होता. पेटेंट में क्या है कि अगर माइनर मॉडिफिकेशंस हो भी गए हैं तो वो सब्सटेंशियली सिमिलैरिटी चेक करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट एज अ सिस्टम है उसमें उन्होंने क्या चेंजेस करे, तो आपका जो प्रोटेक्शन है दैट इज more on a higher level than the copyright. Although copyright का term बहुत ज्यादा है, it's like author's life plus 60 years, but modification बहुत easy होता है. जैसे कि हम copy कर लेते हैं, usually everyone would accept कि being a student we copy the data from others journals and everything. We just don't write everything from our own. So this is very easy in the copyright as well कि copyright कुछ matter हमें मिल रहा है, हमने copy कर दिया, software हमने copy कर दिया, but patent में ऐसा नहीं है. That's why we go for the patent thing कि हमारा अगर product और process है which has the commercial value, then protected under the patent. There are certain other things which are restricted like literary, dramatic, musical work because it comes under the again copyright. जो copyright में matter जाता है वो patent protectable नहीं है. Then method of performing mental act, कि अगर आप कोई गेम खेलने का आइडिया निकाल रहे हो या आपने कोई बिजनेस करने का आइडिया निकालने का, like how to train students, that's just a method of performing mental act. It cannot be patentable. Similarly, presentation of information. आपने किसी चीज को प्रेजेंट किया है कि how we can use it, how we can use this product. That is again comes under the copyright. It will not go under the patent protection. Topography of integrated circuits. जितने भी integrated circuits होते हैं वो पेटेंट में नहीं जाते. That comes under the semiconductor devices protection. There are certain other things also, like अगर आपने ना कोई भी abstract theory निकाला है, like जो भी already पहले से पता है theory,
किसी की बुक में से आपने पढ़ा है, कोई भी प्रोसेस या प्रोडक्ट के बारे में आपने उसमें से निकाला है विच वाज ऑलरेडी देयर, वो भी प्रोटेक्टेबल पेटेंट में नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल इज ये अभी का रिसेंट एग्जाम्पल है कि एप्पल ने एक सेल्फ डिप्लॉइंग स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर्म किया। दैट मीन्स कि जब भी आपका फोन नीचे गिर जाता था, क्रैक हो जाता था, अब इट इज लाइक कि स्क्रीन प्रोटेक्टर अपने आप ही सेल्फ डिप्लॉय हो जाएगा। सो आपका जो फोन है वो क्रैक होने से बच जाएगा। सो दिस इज एन अनदर एडवांसमेंट एप्पल केम अप विद दिस काइंड ऑफ आइडियाज कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेट करते रहना है, बिकॉज एप्पल्स हैव थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस, थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन प्रोटेक्शन एप्लीकेशंस, एंड वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करता है। दैट्स व्हाई इट्स ऑन नंबर 1 इन द मार्केट। अगर वो वहीं पे स्टॉप हो जाता कि हमने तो एप्पल का फोन बना लिया, अब तो हो गया, हमारा तो इससे काम हो रहा है, हमें तो बहुत पैसे मिल रहे हैं, बट अगर आप एडवांसमेंट ही नहीं लेकर आओगे मार्केट में तो आपका जो है प्रोडक्ट वहीं पे वहीं खत्म हो जाएगा, बिकॉज देयर आर कॉम्पिटिटर्स आल्सो हु आर फॉलोइंग इट एंड आपसे बेटर वो बना सकते हैं। सो कॉन्स्टेंटली आपको कुछ ना कुछ नया लेकर आना है। सम पीपल मे नो अबाउट दिस और सम पीपल मे नॉट, क्योंकि मार्केट में अभी ये नहीं आया है, कुछ जगह पे ये सिर्फ एप्पल के शोरूम्स में मिल रहा है। दैट इज ऑल। मे बी वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर राउंड नाउ। Thank you, ma'am. It was indeed very informative. Now I would request the audience to kindly ask your questions either by unmuting yourself or you could also post in the chat box. So I think no one have any question. Maybe you can just note down my phone number or email ID in case in future, if you work in IPR or maybe you have idea or you want to discuss me one to one, then you can also, call me or email, send me an email and we can have a discussion. Now we'll be ending the seminar, ma'am. We'll be sharing your Yes. details as well into the, into the workshop group that we have. And if you just allow, so we would also like to share the PPT with the students, so that they could go on for it. Yes, sure. Yeah, thank you, ma'am. Thank The, you. yeah, the institution's Innovation Council extends sincere gratitude to Ms. Anu Gupta for taking out the time from your busy schedule and delivering this session today. We are grateful for the learning experience that you have provided, ma'am. We extend our deepest gratitude to our principal, ma'am, Dr. Payal Mego, for being a pillar of support and strength. We would now like to extend our heartiest thanks to all the teachers for their constant support and motivation. Last but not the least, very important, we would like to thank our lovely audience for showing their keen interest in this session. Thank you so much. Okay, thank you everyone.